آج ہم دیکھیں گے پہلا سیموئل کی پہلی کتاب پرانے عہد نامے میں، سیموئل کی پہلی کتاب پرانے عہد نامے میں، اس کا باب نمبر ہے 30، چیپٹر 30۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا اسٹڈی کر رہے ہیں ان دنوں میں، کس چیز پہ؟ جی، صلح کرے گا، جنگ کرے گا، ہمارے سے صلح کرے گا، شیطان سے جنگ کرے گا، ہمارے سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ اور ہم نے، آپ کو پتہ ہے، خروج 14ویں باب کی 14ویں آیت جو ہے وہ اس کا ٹاپک ہے کہ موسیٰ نے کہا خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے، آمین۔ جب وہ سمندر کے سامنے آ گئے تھے اس وقت موسیٰ نے کہا تم مت گھبراؤ، خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا۔ اگر آج آپ کی لائف میں اس طرح سے ابتری، پریشانی، بے چینی، ناکامی، فیلئر، مصائب نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پھنس گئے ہیں، اگر آپ کے سامنے سمندر اور پیچھے مصری فوجیں ہیں تو بھی آپ فکر نہ کریں، آج بھی خدا جنگ کرتا ہے، ہاللیلویہ۔ خدا تمہاری طرف سے جنگ کرے گا کیونکہ جنگ خدا کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ سکھا رہے ہیں جنگ خدا کی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس یہ ہم نے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنگ خدا کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آرام سے لیٹے رہیں، سوتے رہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہم نے جنگ کرنی ہے، ہم نے دعا کے وسیلے سے جنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج دیکھیں، ذرا اسٹڈی کریں گے اس کو، 30واں چیپٹر جو ہے اس کا۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ عمالیکیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا، اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا۔ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیے۔ سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں۔ تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی، آمین۔ میرے عزیزو، یہ جو چیپٹر ہے داؤد کی، یہاں پر جو جنگ ہے، اس میں سے بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے، اس میں سے بھی خدا نے میری رہنمائی کی ہے، خدا نے مجھے اس میں سے بہت سی باتیں سکھائیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں نے بتایا کہ میں بائبل کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں سیکھنے کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا سے مدد مانگتا ہوں، خدا رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں کی جو جنگ ہے، یہاں پر جو ایک پرابلم کریٹ ہوئی ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ لوگ، عمالیکی جو لوگ تھے، انہوں نے سکلاج پر چڑھائی کی اور اس سارے علاقے کو انہوں نے آگ سے پھونک دیا، اور نہ صرف آگ سے جلا دیا بلکہ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی اسیر کر کے لے گئے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی ابلیس یہی کچھ کرتا ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں فائنینشلی نقصان پہنچاتا ہے، وہ ہمارے کاروبار کو فیل کرتا ہے، وہ ہمارے بزنس کو ناکام کرتا ہے، وہ ہمارے فائنینس کو کم کرتا ہے، ہمارے پیسے کو چراتا ہے، ہمارے نقصان کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں کے فائنینشلی کرائسس چلتے رہتے ہیں نا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکی نہیں دیتے۔ پہلی بات یہ بھی ایک جنگ کا ایک طریقہ سیکھ لیں۔ میں نے بتایا کہ ہماری جنگ تلوار اور اسٹین گنوں کی نہیں ہے، تلوار اور بھالے کی نہیں ہے، ہماری جنگ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرنے کی ہے۔ اور ہم نے ہتھیار جو لینے ہیں، وہ افسیوں کے 6 باب میں ہم نے دیکھا کہ کس طور سے وہ سارے ہتھیاروں کا ذکر ہے جو پیچھے ہم کر چکے ہیں۔ آپ نے وہ ہتھیار لینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی تابعداری کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے جی؟ بڑی جو آج کلیسیا کی ناکامی کی وجہ، جو فائنینشلی ناکام ہے آج، کیونکہ ہم روپیہ پیسہ کے بارے میں خدا پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ بہنوں بھائیوں پر تو کرتے ہی نہیں ہیں، اپنے عزیزوں پر تو کرتے نہیں ہیں، ہم خدا پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ ابلیس ہمارے ذہن میں یہ ڈال چکا ہے کہ تم نے دیکی نہیں دینی، اگر تم دیکی دے دو گے تو تمہارے بچوں کی فیسیں کہاں سے آئیں گی؟ اگر تم اتنی بڑی اماؤنٹ چندے میں دے دو گے تو تمہارے بچوں کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ اور تم اتنی اماؤنٹ دے دو گے تو تمہارے پورے مہینے بھر کا راشن کہاں سے آئے گا؟ یہ سوال آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں آپ کے ذہن میں؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں تو بولو، دلیری کے ساتھ بتاؤ، آتے ہیں نا یہ سوال؟ جب ہم اماؤنٹ نکالتے ہیں پھر ہم اس کو واپس ویسے ہی ڈال دیتے ہیں، جب ہمارے سامنے حساب ہم کرتے ہیں پھر ہم اس کو ویسے ہی واپس ڈال دیتے ہیں۔ اصل میں ہم اس کو ویسے سیف نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے پیسے کو برباد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکی ایک ایسا بیج ہے، دیکی ایک بیج ہے، اگر آپ بیج ہی کو کھا جائیں گے تو بوئیں گے کہ اگلے سال؟ اس پہ میں نے کافی کلام سنا ہے۔ آپ کو پتا چندے پر میں زیادہ کلام نہیں سناتا ہوں۔ پچھلے دنوں خدا نے مجھ سے کلام کیا، اس نے کہا اپنے بھائیوں سے کہے کہ کچھ نہ کچھ فائنینشیل، چاہے 1% اپنی دیکی بڑھا دیں، چاہے 2% بڑھا دیں۔ اور میرے ایک بھائی نے مجھے بتایا، اس نے کہا بھائی
मैं नाम इसलिए रहा कि राजदारी में रहे तो अच्छी बात है, किसी को बताने की क्या जरूरत है, खुदा जानता है। उसने कहा भाई मैंने 3% बढ़ाया था और मुझे खुदा ने एक और तरीके से ब्लेस करना शुरू कर दिया, एक और दरवाजा खोल दिया, वहां से पैसे आना शुरू हो गए मेरे को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो जंग में नाकामी हमारी है, जंग खुदा की है, और हमारा जो मैदान जंग है आज वो हमारा जहन है। हमारे जहन में शैतान को क्योंकि हमने जगह दे दी, हमने कलाम को जगह नहीं दी, बल्कि किसको जगह दिया जी? किसको? हाँ, अब शैतान जो है वो तो है ही शैतान, है ना। शैतान की अच्छी चीज है, बताए मुझे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, शैतान बनता बहुत अच्छा है। पिछला कलाम जो मैंने दाऊद और जाति जो लिखा, लेकिन सैमसन के बारे में मैंने वो कलाम एक रिकॉर्ड कराया था, उसमें मैंने पीएमसी चैनल पे मैंने ये बताया था कि इब्लीस जो है वो हमारे जहनों में बैठकर हमें फैसिलिटेट करता है। मैं ये बता रहा था कि ये जो सैमसन है, शमसून जिसका मतलब रोशनी है, जिसका मतलब नूर है, और शमसून जो रोशनी है उसने तारीकी के साथ दोस्ती कर ली। किसके साथ दोस्ती कर ली? क्योंकि इब्लीस बहुत ब्यूटीफुल बनकर आता है। आपको पता, दिलाइला जो थी वो ब्यूटीफुल औरत थी, उस पर फिल्म भी बनी है, और वो मैंने फिल्म भी देखी थी सिनेमा में जाकर, मैंने देखा और मैं ज़ारो कतार रोया था वहां पर कि इतना बड़ा ममसू जो था खुदा का, उसने अपने आप को दिलाइला की गोद में दे दिया था। जंगी हीरो था, लेकिन शैतान इस तरह से, क्योंकि जहन में शैतान समा गया था, उसने जगह दी उसको और दिलाइला की गोद में वो चला गया। आज बहुत से नौजवान बेटियां और बेटे दिलाइला की गोद में हैं, बेटे दिलाइला की गोद में हैं। आपकी दिलाइला फर्क, हर एक की दिलाइला फर्क है। सैमसन की दिलाइला खूबसूरत औरत थी, आपकी दिलाइला शायद पैसा हो सकता है, आपकी दिलाइला शायद केबल नेटवर्क हो सकता है, आपकी दिलाइला शायद रात को जाग कर और वीडियो चैट हो सकती है अननोन लड़कियों के साथ। लेकिन याद रखिए, वो ब्यूटीफुल चेहरे, अगरचे उसने उसको बड़ा फैसिलिटेट किया, उसने उसको अपनी गोद में लिटा लेती थी। वो कहां लिटाती थी उसको? अपनी गोद में लिटाकर उसके बालों को सहलाती थी और उसको फिर पूछती थी। शैतान आज हमें हमारे जहनों में समाकर हमें ऐसी तालीम दे देता है जिससे हम, उसने कहा बाप, पापा जी मेरी बात सुने, डैडी मेरी बात सुने, मुझे वो लड़की पसंद आ गई है और मैं अपने जिंदगी गुजारने का हक रखता हूं। उसने कहा बेटा खुदा का कलाम हमें मना करता है। उसने कहा सो व्हाट, फिर क्या हुआ, बस मेरा दिल उसके साथ मिल गया है। और उसने कहा बेटा तेरी कलीसिया में, तेरी कौम, हमारी कौम में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्या कोई ऐसी लड़की नहीं? उसने कहा नहीं नहीं, मुझे वही लड़की भाती है। और उसने उसको इतना प्यार किया सैमसन को। असल में वो प्यार ऊपर का था, शैतान ऐसी लगता बहुत अच्छा है अंदरों शैतान। क्या शैतान जब सच बोले तो अच्छा है? सच भी बोले तो झूठा है। सच भी कई बार बोल रहा तो झूठा ही है। शैतान सच भी बोले तो झूठा, क्योंकि उसकी बेस झूठ है। वो सच भी किसी चक्कर से बोलता है, वो विलन का किरदार अदा करता है। फिल्मों में विलन का किरदार ये होता है ना, कई बार वो चक्कर में डालता है, उसके लिए हीरो के लिए जाल बुनता है। जो स्टोरियां लिखते हैं लोग, उनको पता है, जो किताबों में भी लिखा है इस तरह से, वो ही कुछ शैतान करता है। और वो उसको इतना प्यार करती थी, लिखा वो उससे मोहब्बत करता था और वो उसको अपने गोद में लिटाती थी। याद रखिए, अपने आप को मत दिलाइला की गोद में जाने मत देना, अगर चले गए तो बड़ा नुकसान होगा। और उसने कहा सैमसन क्या तुम मुझसे मोहब्बत करता? उसने हाँ हाँ मोहब्बत करता हूँ। उसने कहा तो फिर? उसने कहा मुझे ये बता तेरी इतनी पावर कहाँ से? आदमी तू और आदमियों जैसा ही है, थोड़ा सा तू लंबा चौड़ा, चलो अगर एक आदमी में इतनी पावर है तो तू 4 आदमी इतनी पावर होगी तेरे अगर तबाही कुव्वत हो। लेकिन तू तो कोई अजीब ही मखलूक है, तू तो इतने हजार बदे मार देता है। और वो पता कर रहा था, लिखा क्या ये मुमकिन है कि आदमी अपने दामन में आग रखे और उसके कपड़े ना जले? अगर आप अपने कमीज के अंदर आग के अंगारे डाल लें तो कमीज सही रहेगी आपकी? आग उसमें निकल, कपड़े जल जाएंगे आपके, आपके कपड़ों को आग लग जाएगी और आपकी मौत वाक़ हो जाएगी। वो समझता था कि मैं बड़े चक्कर से चल रहा हूँ, मैं बहुत एडवांस हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। चकमे दिए भी उसने उसको। उसने कहा जी तुम मेरे बालों को नई रस्सी से बांध दो, बस मैं कमजोर हो जाऊंगा। उसने बांधा और आवाज दी, उसने छुपाए थे लोग, और उसको बेवकूफ इतना बन गया। इतनी अक्ल मारी जाती है इंसान की उस वक्त, उसको फिर भी नहीं ये पता लगा कि ये मेरे साथ वफादार होती तो सचमुच में फलस्तीन कहां से बुला लेती। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कितनी बार उसने उसके साथ धोखा किया, लेकिन उसको समझ नहीं आई और वो फिर उसकी गोद में जाकर लेट जाता था। और एक दिन जब लेटा, लिखा उसने उसकी नाक में दम कर दिया। आप कितने भी चकमे दे ले शैतान को, आप शैतान से ज्यादा चक्करबाज नहीं हो सकते। वो ज्यादा चक्करबाज, वो ज्यादा चकमे दे सकता है आपको। वो समझता रहा कि मैं ऐसे इसको धोखे देता रहूंगा और अपना मतलब हल करता रहूंगा, प्यार मोहब्बत की बातें करता रहूंगा। लेकिन वो इतनी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, उसने आंसू निकाले, मगरमच्छ के आंसू निकाल लिए उसने, नकली आंसू।
उसका दिल हिल गया, उसने कहा ना रो, मैं औरत के आंसू नहीं देख सकता, मैं अभी तुझे सारी बातें बताता हूँ। यही हम ऐसे ही करते हैं, हम अपनी सारी राज की बातें, आपने देखा मैंने वो राज नहीं बताया भी कि कौन सा भाई था वो, मैंने कहा खुदा राज रहे तो अच्छा, क्योंकि हमने बहुत से राज बता बता के हमने बहुत नुकसान उठाया। और उसने जब कहा, उसने कहा देख रो मत, मेरा दिल आगे बड़ा कमजोर है, मैं बंदा बॉडी बिल्डर हूँ, दिल मेरा छोटे बच्चे जैसा है। उसने कहा मेरे सर पर कभी उस तरह नहीं फिरा है, खुदा ने पैदा होने से पहले कलाम कर दिया था मेरे लिए। और जब उसने सारी बातें खोल कर बताई, उसने वहीं गोद में लेटे लेटे उसके बाल काट दिए और लिखा फिर उसको पता भी ना चला कि खुदा उससे जुदा हो गया। अगर आप आज डिलाइला की गोद में चले गए हैं, अगर आपका रिश्ता डिलाइला के साथ जुड़ गया है, अगर आपने वो काम वो फाइनल कर लिया जो कलाम के खिलाफ है, तो आप समझें कि आपसे खुदा जुदा है। पता भी नहीं लगता, लगता ऐसे ही था उसको, उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उसकी आंखें निकाल ली, उसको कमजोर हो गया वो। मेरे अजीजों, आज का जो मसला है, इधर अमालिकियों ने तबाह करा उस शहर को, उसको आग से जला दिया, उसको फना कर दिया, और यहाँ तक भी शैतान सांस नहीं लेता। मैदान जंग में वो उतरता है जब, तो वो तो एंड तक नस्लों की नस्लें मुका देता है। और ना सिर्फ उसने उनकी बिल्डिंगें तबाह करी, उनका शहर जला दिया, बल्कि उनकी बीवियां, उनकी बेटियां भी ले गया, उनके बच्चे भी असीर करके ले गया। आज मैं आपको इलानिया कहना चाहता हूं, आज बहुत से मसीहों के बच्चे, बहुत से लोगों के बहन भाई असीर हैं। हमारे पास लोग आके बताते हैं कि मेरा बच्चा असीर है, शैतान का असीरी में है, आज शैतान ने हमारे बच्चों को गुलाम बनाया हुआ है। बहुत से लोग हमें बताते हैं, आकर रोते हैं हमारे सामने। और आपकी बेटियां और बेटे आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत से बेटियां और बेटे, हमारी बेटियां गैर कौमों के साथ चली जाती हैं और हमें फोन करके और फिर खुदा की कुर्बत की बातें बताती हैं। क्या मुमकिन है कि खुदा उनके साथ है? क्या सैमसन जब उसकी गोद में लेटता था, खुदा कर उसके साथ ठहर सकता था? वहां पर कभी भी नहीं ठहर सकता था। जब सैमसन गलत जा रहा है, जब हम गलत जाएंगे, आप गलत जाएंगे, जो कलाम के खिलाफ जाएगा, खुदा उससे जुदा है। गलत फहमी में मत रहे कि खुदा हम गुनाहगारों के लिए ही आया था, हम तो गुनाहगार बहुत हैं, खुदा बहुत सुनता है हमारी। ये गलत धोखा दिया हुआ शैतान ने हम लोगों को। सैमसन के साथ खुदा कोई नहीं था और वो अपनी बॉडी को झटके दे रहा था, कह रहा था खुदा के, उसने देखा वो तो आम आदमी बन गया, उन लोगों ने चपेड़े मारे, उसको खींचा उसको और उसकी आंखें निकाल ली। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके बच्चे असीर हैं, शैतान ने असीर किए हैं, कैसे उसके साथ जंग नहीं कर सकते? आप उसका रिंग में मत जाएं, घुटनों के बल आ जाए उसके सामने, घुटनों के बल हो जाए। क्या करना है आपने? जब ये देखें यहाँ पर आए ये सब लोग, जब दाऊद आया, लिखा 4 आयत, तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। इतना रोए, इतना दुख, हर घर की जवान बेटियां चली गई, हर घर के जवान बच्चे चले गए, हर मर्द की बीवी चली गई, इवन के दाऊद की बीवियां भी चली गई। दाऊद की बीवियां, एबीजिल जो खूबसूरत औरत थी और समझदार, जिसके नाम का मतलब ही ये है, जो पहले नाबाल की बीवी थी, उसको भी ले गए, जिसकी दाऊद तारीफ करता है कि तेरा खुदा मुबारक हो, जिसने मुझे बड़ी खूनरेजी से रोका, उसको भी ले गए। ना सिर्फ कलीसिया तबाह हुई, पासवान लीडर की भी नुकसान हुआ वहां पर, और वहां पर रोना और मातम हो गया। आज हमारी जिंदगियों में रोना और मातम है, रो रो के लिखा, उनकी आंखों के आंसू खत्म हो गए, उनमें रोने की ताकत भी ना रही और वो नढाल हो गए। आज भी रो रहे हैं लोग, रो ही रहे हैं। अगर रोते ही रहोगे तो कुछ नहीं बनेगा। रोने के साथ रोना तो ठीक हो गया, रोने से अगला स्टेप दाऊद ने क्या किया वो देखें। जब रोकर थक गए, उन्होंने सांस लिया, फिर लिखा यहाँ पर, और दाऊद की दोनों बीवियां यजरीली, अखीनुम और किरमली नाबाल की बीवी एबीजिल असीर हो गई थी, और दाऊद बड़े शिकंजे में था, क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा को, पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को किस में मजबूत किया? किस में? वो शिकंजे में था, वो बड़ी मुसीबत में पड़ गया। एक तो उसको दुख के उसको अपनी बीवियां भी चली गई, दूसरा कलीसिया उसके पीछे पड़ गई, कौम उसके पीछे पड़ गई। वो कहने लगे तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। दाऊद को कहने लगे इसको संसार करो, क्योंकि वो अपनी बेटियों और बेटों की वजह से नहायत गमगीन थे। वो सोच रहे थे कि पता नहीं दुश्मन हमारी बेटियों के साथ क्या करेगा, पता नहीं हमारी बेटियां और बेटे जिंदा भी होंगे कि नहीं, हमारी बीवियां पता नहीं जिंदा भी होंगी कि नहीं। और दाऊद बड़े शिकंजे में फंस गया। दाऊद अक्सर शिकंजों में फंसता रहा है। ईमानदार शिकंजों में फंसते रहते हैं। ईमानदारों को
शैतान शिकंजे में फंसा देता है, लेकिन शिकंजा कितना ही बड़ा हो, जाल कितना ही मजबूत हो, कितनी ही बड़ी केज, चाहे लोहे के बड़े आयरन रॉड आयरन लगाकर रॉड आयरन के साथ बनाए गए हो, सलाखों के साथ बनाए गए हो, आप आजाद हो सकते हैं अगर आप अपने आप को खुदावंद में मजबूत करें। किस में मजबूत करना है? उस टाइम पे तो कहते हैं दुआ ही नहीं की जा रही, वही वो वक्त है जब खुदावंद तैयार है आपकी मदद करने के लिए। आंसुओं के साथ जब दुआ करेंगे, वो रो रो कर उनके आंसू खत्म हो गए, उनमें रोने की ताकत नहीं रही थी, इतना रोए, इतना मातम किया। लेकिन याद रखिए, आज सिर्फ रोने वाले लोग रोते ही न रहे, बल्कि अगला स्टेप उठाएं। दाऊद एक और जगह पर शिकंजे में फंसा था, पहला तवारीख 21वां बाब अगर हम देखें 9वीं आयत से 13वीं आयत तक, वहां पर जब इसने गिनती करना शुरू किया तो फिर चाद का जो नबी था उसने आकर बताया, उसने कहा खुदावंद ने मुझे भेजा है तेरे पास, तेरे लिए खुदा का हुक्म है कि 3 साल तक तेरे मुल्क में काल पड़ जाए। अब वबाएं मैं तुझे बताऊंगा, मुसीबतें मैं तुझे बताऊंगा, चूज तूने करनी, ये खुदा ने भेजा मुझे और फिर तूने मुझे बताना है ताकि मैं अपने भेजने वाले को जवाब दूं। अभी मुझे जवाब चाहिए। उसने कहा खुदा ने कहा है कि तेरे मुल्क में 3 साल काल पड़े या 3 महीने तक तू दुश्मन से भागता रहे। ये पढ़ेंगे जरा हम, पहला तवारीख 21वां बाब 9वीं आयत से। यहाँ पर लिखा है पहला तवारीख 21वां बाब 9वीं आयत, 8वें आयत से पढ़ लेते हैं। तब दाऊद ने खुदा से कहा, मुझसे बड़ा गुनाह हुआ कि मैंने ये काम किया, अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने बंदे का कसूर मुआफ कर, क्योंकि मैंने बेहुदा काम किया है। दाऊद की खूबसूरत बात यह है, गलती को मान लेता है। हम तो मानने को तैयार नहीं, हम तो दूसरे को गुनाहगार साबित करने पर तुले रहते हैं। जंग खुदा की है, जंग हमारी नहीं है, जंग खुदा की है। लेकिन हमने क्या करना है? हमने दुआ करनी है, हमने प्रस्तिश करनी है, हमने अपने गुनाहों का इकरार करना है। कोई हमें कहेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम खुद तो अपने आप को कहते रहते हैं गुनाहगार, लेकिन हमें तौबा करनी चाहिए। दाऊद ने कहा मुझे माफ कर क्योंकि मैंने बेहुदा काम किया। और खुदावंद ने दाऊद के गैब बिन जात से कहा, गैब बिन भी दाऊद का ये, कि जाकर दाऊद से कह खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 चीजें पेश करता हूं, उनमें से एक चुन ले ताकि मैं उसे तुझ पर भेजूं। एक जरूर आएगी, ये नहीं कि तीनों की तीनों वबाएं तेरे पास से जाती रहें, एक चुननी होगी। नंबर 1, सो जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि जिसे तू चाहे उसे चुन ले, या तो कहत के 3 बरस या अपने दुश्मन के आगे 3 महीने तक हलाक होते रहना, ऐसे हाल में कि तेरे दुश्मन की तलवार तुझ पर वार करती रहे, या 3 दिन तक खुदावंद की तलवार यानी मुल्क में वबा रहे और खुदावंद का फरिश्ता इस्राएल की सब हदूद में मारता रहे। अब सोच ले कि मैं अपने भेजने वाले को क्या जवाब दूं। और दाऊद ने जाद से कहा, मैं बड़े शिकंजे में हूं, मैं खुदावंद के हाथ में पड़ूं क्योंकि उसकी रहमतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इंसान के हाथ में ना पड़ूं। आमीन। दाऊद ने कहा मैं बड़े शिकंजे में हूं, एक मर्तबा फिर शिकंजे में। यहां पर भी लिखा, यहां पर लिखा है 6ठी आयत, पहला शमूएल 30वां बाब 6ठी आयत। और दाऊद बड़े शिकंजे में था क्योंकि लोग उसे संसार करने को थे, बार बार शिकंजा टाइट कर देता था शैतान उसका, लेकिन उसके पास एक तरीका था बचने का, वो आप सीख लें, मैंने भी सीखा है। जितना शिकंजा टाइट हो, जितने हालात टाइट हो, जितने प्रॉब्लम्स आपकी तरफ हैवी हो जाएं, शैतान आपके खिलाफ आ जाए, हालात आपके खिलाफ आ जाएं, अजीज आपके खिलाफ हो जाएं, आप अपने आप को खुदावंद में मजबूत करें, क्योंकि खुदा रिहाई देता है, क्योंकि खुदा शिफा देता है, क्योंकि खुदा बचाने वाला है। हालेलुया। और देखें फिर क्या हुआ। रोना खत्म करें, रोते ना रहे, रोने से अगला स्टेप उठाएं, जंग की तैयारी करें। और जंग कैसे करनी है? रोजे और दुआ के साथ। हालेलुया। और दाऊद ने अखीमलक के बेटे अबियातर काहिन से कहा कि जरा अफूद को यहाँ मेरे पास ले आ। सो अबियातर अफूद को दाऊद के पास लाया। और दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जा लूंगा? उसने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जा लेगा और जरूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। लोग कहते हैं क्या अब ये मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है, ओनली बिलीव। क्या मेरा बच्चा वापस आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। क्या मेरी ये बीमारी चली जाएगी? हाँ चली जाएगी। क्या मेरे बेटी को अच्छा रिश्ता मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। क्या मेरे हालात बहाल हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। अपने आप को खुदावंद में मजबूत करें। किस में मजबूत करना है? खुदावंद में। खुदावंद में मजबूत करना है। दुआ में झुक जाएं, रोजा रखने लग जाएं, बाइबल पढ़ना शुरू करें, कलाम को मेडिटेट करें। और उसने कहा अफूद को यहाँ पर ले आ। अफूद उस ड्रेस को कहते हैं जो काहिन पहनते थे, और प्राइवेट लोग भी इसको पहनते थे, चुनिंदा खास खास। और इसको पहनने का मकसद ये था, उसने वो लिबास पहना
اور خدا کی حضوری میں چلا گیا. اور اس کے اوپر اوریم اور تمیم بھی ہوتے تھے, ایسے پتھر تھے وہ جن سے وہ خدا کی مرضی معلوم کرتے تھے. شاید وہ اس کو قرہ ڈالتے تھے, یا دوسرا اس کی لوگوں کے پاس یہ بھی تفسیر ہے کہ جب وہ دعا کرتے تھے کاہن تو خدا براہ راست ان کے دل میں کلام کرتا تھا, ان سے دل میں ڈال دیتا تھا بات کہ ایسے کرو. اور اس نے جب وہ کاہن والا ڈریس پہن کر خدا کی حضوری میں آیا اور خدا سے اس نے دعا کی. خدا کے آج آپ کو پتا ہے آپ کے پاس تو لباس ہے ہی نہیں جب تک تم کو عالم والا سے. داؤد سمجھتا تھا, داؤد نے کہا انجینئر کے ودنا ٹھہر جو ذرا, یہ نہیں روتے روتے جذبات میں سی مار دیں گے. آج یہی بات ہے, شیطان ہمیں مارتا جاتا ہے اور چپیڑے ہمیں پڑ رہی ہوتی کہتے ہیں سی ماریں گے شیطان میں. نہیں, جب تک آپ کو عالم والا سے کیا کرنا, آپ نے ٹھہرے رہنا ہے. ٹھہرتا کون ہے ساڈے کہندے بھائی جسٹن کو ٹھہر کے کی ملے گا. اے بہنا جڑا بڑا کم دا ہی میں تانوں دسنا چاہنا ہوں میرے پیارے عزیز بہنوں تے بھراؤ, یہ بیٹھنا بہت کام کا ہے. اس کی آپ کو بلیسنگ مل رہی ہے. اگر آپ یہاں اتنے سالوں سے نہ بیٹھے ہوتے تو پھر آپ کہاں ہوتے, آپ خود سوچ لیں. اور آپ کی لائف میں ابھی شیطان جدا نہیں ہوتا, وہ ٹارچر کرتا رہتا ہے, لیکن کیونکہ دعائیں اور کلام اور روزے اور پرستش کے وسیلے سے اس کو آگ لگتی ہے, وہ بھاگتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے جی, جنگ کرنی ہے تو جنگ میدان جنگ میں اترتے کے ساتھ کیا لینا ہے جی, قوت کا لباس. قوت کا لباس لینا ہے, اور قوت کا لباس پہننا بہت ضروری ہے. آپ اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. اور داؤد بھی سمجھدار تھا, خدا کے کاموں کو جانتا, خدا سے بڑا گہرا رشتہ تھا اس کا. بہت سے کاہنوں سے زیادہ وہ انانٹڈ تھا کیونکہ اس کی دعا کا لیول بہت اوپر تھا. اور جتنا کوئی دعا کرتا ہے, جتنے کوئی روزے رکھتا ہے, جتنا کوئی کلام پڑھتا ہے, اتنے زور سے شیطان بھی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اور جو نہیں پڑھتا اس کو تو وہ ہوا سے گرا لیتا ہے. میں نے ایک ببر شیر کی فلم دیکھی تھی, جنگل میں اس کو ہرن کا بچہ مل گیا, تو اس کے پیچھے نہ وہ بھاگا زور سے, چھوٹا سا بچہ تھا, اس کو آرام سے وہ ایسے کرے, کبھی ایسے کرے, کبھی اپنے پاس کر لے, وہ تھوڑا آگے چلا جائے. پھر اس کو یہ تھا کہ میرے اپنے ہاتھ میں جب مرضی کھا لوں گا اس کو, ہے نا. یہی کچھ شیطان کرتا ہے جو بالکل خدا کو جانتے ہی نہیں ہے, جو صرف مصیبت کے مصیبت خدا کو پکارتے ہیں. ان کو وہ کبھی ادھر سے کک مارتا ہے, کبھی ادھر سے, وہ کھیلتا رہتا ہے ہمارے ساتھ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے. اور داؤد نے کہا ذرا میرے پاس افود کو لے آؤ. اس نے پہنا اور خداوند سے پوچھا, اور خداوند نے کہا تو جا. ہاللیلویا. جب خدا کہہ دے کہ تو فتح مان دے تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے. یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں, ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اگر یہ یقین ہے تو ہم تو کامیاب ترین لوگ ہونے چاہیے. میں تو اب اس کو پریکٹس میں لاتا ہوں, میں اس کو کہیں مجھے ضرورت پڑتی میں کہتا ہوں خداوند تو میرے ساتھ ہے, میں جا رہا ہوں آگے, اور خداوند تو میری مدد کرنا. اور خدا کام کر دکھاتا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے, شیطان کو پتا ہے کہ اس کو یہ بات پتا ہے. جو لوگ اس طرح سے ایمان میں نہیں چلتے ہیں, شیطان کو ان کا بھی پتا ہے. اور اس نے کہا میں جانتی ہوں سب کو, میں پولوس کو بھی جانتی ہوں, اور تم کون سے ہو؟ پادری جوزف صاحب میرے دوست تھے, پادری جوزف کرم دین, وہ خداوند کے پاس ہیں اس وقت, آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو چکے ہیں. وہ کہتے تھے جب تم شیطان کے ساتھ تمہارا انکاؤنٹر ہوتا ہے, تمہارا آمنا سامنا ہوتا ہے, تو شیطان فوراً اپنے ہیڈ آفس سے رابطہ کرتا ہے کہ سر ذرا بتائیں یہ بندہ کون ہے. وہ فوراً اس کا بایو ڈیٹا اس کو بھیجتے, کہتے ہیں وہ بہت بڑا روحانی بندہ میں چھیڑ. کل ہم پرسوں اسلام آباد گئے تھے, تو میری جو پھوپھی ہیں ان کے ایک بیٹے کو بدروہیں تنگ کر رہی تھی, اور ان کے فیملی میں اور لوگوں کو بھی وہ تنگ کرنے لگیں, اور سب لوگ جو تھے رات کو سوتے نہیں تھے, ان کو سریحن طور پر نظر آ رہی تھی, اور کیا کچھ ہو رہا تھا. اور وہ کہنے لگے بس آپ آ جائیں جلدی سے. میں نے کہا میرا آنا ضروری نہیں ہے, پہلے یسوع کا آنا ضروری, پہلے سب دعا میں چک جاؤ. اگر تم دعا کرو گے تو میں آؤں گا, اگر تم دعا نہیں کرو گے میں بھی نہیں آؤں گا. مجھے پتا جب دعا ہی نہیں کرنی تو خدا کیسے کام کرے گا. وہ جناب دعا کرنے لگے, بائبلیں ہاتھ میں پکڑ لی. وہاں جی کہے نا بائبل ہے گی, کہتے نہیں ہے گی, لبتے پھرتے نے ہے کہ تھے. اب بائبلیں سب کے ہاتھ میں اپنے اپنے, جناب کہہ رہے پاسٹر صاحب ہماری تو بائبلیں ہمارے سینے پہ رکھ کے سوتے ہیں, اب بائبل کو جدا نہیں کر رہا. اچھا, ہم جمعرات کی رات کو جب یہاں سے نکلے, ہمیں شیطان نے بہت مشکلات میں ڈالا, ہم بھی واپس نہ آئے. ہم نے کہا ایک دفعہ تو ہم نے سوچا واپس چلیں, لیکن شاہد بھائی نے ہماری ہمت بنائی. اس نے کہا نہیں سر ہم آگے بڑھیں گے یسوع کے نام سے. اس نے ٹکٹ بھی رات کی لیٹ ملی, 3 بجے ہم وہاں پہنچے, 5 بجے گھر سے نکلے اب حساب لگانے, اور 4 بجے تک ان کے گھر پہنچے. لیکن انہوں نے مجھے ایک بات بتائی, انہوں نے کہا, میں کہا ہاں بھائی, جب میں گیا تو جو بزرگ گفتا تھا وہ سو رہا تھا بے خبر, میرے کو دیکھ کے اٹھ گیا, ایک دم اٹھ کے نارمل حالت میں باتیں کرنے لگا. میں نے کہا ہاں بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا سر آپ نے رات کو فون کیا نا, ہم سارے ٹھیک ہو گئے, ہم آرام سے سوئے رات کو. ہاللیلویا. میں نے کہا ہے, کہہ رہے یہ تو سوتا ہی نہیں تھا. اس نے کہا ہم 2 بہنیں اور یہ والا ہمارا بچہ تو سوتا ہی نہیں تھا رات بھر. اور اس نے کہا بس آپ کا فون آیا, تمہارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی,
और हमारे घर में सब कुछ ईजी हो गया। मेरे को बात याद आई, पादरी जोसेफ कहते थे वो शैतानी बदरुओं ने राब्ता किया होगा, वो जड़ा बंदा आंडिया जरा दसो एदा बायोडेटा, उन्हें कहा दौड़ जाओ, अग ला देंगे ही नहीं थे। उन्हें कहा तो एक नहीं आ रहे, 3 आ रहे ने, 3 4 चौथा जड़ा वो सब तो आगे का वो वर्शिपर है, उन्हें तबला बजाओ या मार देना सन। वो कह रहे जी रात से बदरुए भाग गई, वो दोबारा मुड़ के ही नहीं आई उनके पास। हमने सुबह दुआ की, हमने कहा थोड़ी बहुत सामने आवे कोई। कई लोग कहते हैं नहीं जी हाजिर करो, पूछो कितों आई है, पूछो आई कितों है। मैं क्यों तुझे रिश्तेदारी करनी क्यों पूछी उन्होंने, थानू पता कितों आई है, शैतान कोलों आई जी, शैतान की बादशाह में से निकल के आई। और हमने रात उस लड़के का फिर फोन आया, उसने कहा जी मैं खुशी और इत्मीनान से भरा हुआ हूँ, मैं गीत गा रहा हूँ, प्रस्तिश कर रहा हूँ। और हमने शाहिद भाई और मैं और शहजाद जब हमने वहाँ दुआ की तो आप यकीन करें बस हमने 2-3 गीत गाए, और जब हमने ये वाला गीत गाया जिंदा यस्सु मेरी जरूरत है, तो रूहुल कुद्दुस मुझ पर और मेरे भाइयों पर नाजिल हुआ और हम ज़ारो कतार रो कर हमने दुआ की। बस हमने कुछ नहीं किया, हमने इस जंग को इस तरह से फतह किया, हमने अपने आप को खुदावंद में मजबूत किया। हालेलुया। हमने घुटने टेके और दुआ की, और जो बाकी मंदा कमजोर थी वो भी उनकी जाती रही। और वो सारा खानदान कहने लगा जी हमें बपतिस्मा दो। 20-25 लोग हैं, लेकिन वो भी इंतजाम नहीं हुआ, वो फिर हम देंगे इनको बपतिस्मा। वो सब लोग हमने जीत लिए यीशु के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम अपने आप को खुदावंद में मजबूत करते हैं। दाऊद ने क्या किया, इस जंग में जाते हुए खुदा की मर्जी पूछी, खुदा ने कहा हाँ तुम उनको जीत लोगे, फतह कर लोगे और तुम उनको मार लोगे। और लिखा 11वीं आयत, और उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया, उसे वो दाऊद के पास ले आए। एक मिस्री उनको मिला, हम जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ेंगे जरा। एक मिस्री उनको मिला नौजवान, उसने कहा मैं अमलीकियों का नौकर हूँ। उसने कहा तू क्या कर रहा है यहाँ पर, वो मर रहा था। उसने कहा सर मैं अमलीकियों का गुलाम हूँ और मैं बीमार हो गया था। और दाऊद ने पूछा तो फिर, उसने कहा मुझे यहाँ छोड़ गए मरने के लिए। दाऊद ने उसको फौरन रोटी खिलाई, उसको पानी पिलाया, उसको होश में लाया, और लिखा उसकी आंखें रोशन हुई जब खा पी कर। दाऊद ने कहा तू हमें उनके पास ले चलेगा। आप देखें खुदा को जब इंसान की रविश पसंद आती तो वो उसके दुश्मन को भी यही कहते रहते साढ़े बड़े दुश्मन, और देखो दुश्मनों को इस्तेमाल कर रहा है हमारे बेनिफिट के लिए। ये उनका ही लोग, उसने बताया, उसने कहा सर देखो, उसने कहा 12वें आयत से, और उन्होंने अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और किशमिश के 2 खोशे उसे दिए। जब वो खा चुका तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात से ना रोटी खाई थी ना पानी पिया था। तब दाऊद ने पूछा तू किसका आदमी है और तू कहाँ का है? उसने कहा मैं एक मिस्री जवान और एक अमालिकी का नौकर हूँ, और मेरा आका मुझको छोड़ गया क्योंकि 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया था। अब मैं ये सोच रहा था कि यार इतने बड़े जलसे में से एक बंदा अगर बीमार हुआ तो छोड़ क्यों गए? क्या कभी जिंदगी में कोई गुलाम बीमार नहीं होता? असल में खुदा ने उनकी अक्लों को बांध दिया था। खुदा ने कहा इसको छोड़ दो ताकि मेरे लोगों को रास्ता दिखाए। हालेलुया। खुदा दुश्मनों में से तुम्हारे लिए रहनुमाई ले लेता है, दुश्मनों में से मदद ले लेता है। दुश्मन ही मदद करने आ जाते हैं, बुराई में से भलाई निकाल लेता है। हालेलुया। और क्या लिखा? और लिखा और मेरा आका मुझको छोड़ गया क्योंकि 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया। हमने क्रितियों के जुनूब में और यहूदा के मुल्क में और कालब के जुनूब में लूट मार की और सिकलाज को आग से फूंक दिया है। और दाऊद ने उससे कहा क्या तू मुझे उस फौज तक पहुंचा देगा? उसने कहा तू मुझसे खुदा की कसम खा, ना तो तू मुझे कत्ल करेगा और ना मुझे मेरे आका के हवाले करेगा, तो मैं तुझको उस फौज तक पहुंचा दूंगा। हालेलुया। खुदा रास्ते बनाता है, खुदा नामुमकिन का मुमकिन कर दिखाता है। हालेलुया। और लिखा जब उसने उसे वहां पहुंचा दिया तो देखा कि वो लोग उस सारी जमीन पर फैले हुए थे, और उस बहुत से माल के सबब से जो उसने फिलिस्तीयों के मुल्क और यहूदा के मुल्क से लूटा था, खाते पीते थे और ज़ियाफतें उड़ा रहे थे। हाँ जी, मुर्गे खा रहे थे बैल ज़िबा करके। कह रहे देखा हमारे देवता की ताकत, हमने आज दाऊद के लोगों को हरा दिया। वो जो खुदा के अहद के संदूक का नाम लेते हैं, जो अहद का संदूक लिए फिरते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े खुदा के दावे करते हैं, अयाशी कर रहे थे। आपको पता है शैतान भी एक दिन ऐसी ज़ियाफत उड़ा रहा था। जब यीशु मसीह मसलूब हुआ शैतान बड़ा खुश था। उसने कहा लो जी, निजात देने जो आया था वो तो मर गया, अब वो सूली पर लटक गया है, अब नहीं उतर सकता। शैतान ने कहा होगा अपने लोगों को, उसके फरिश्तों ने पूछा होगा सर जी अब क्यों नहीं उठ सकता वो? उन्हें कहा होगा मैंने डाकू के अंदर होके बात की थी उससे, उसको मैंने तड़ी कराई थी, मैंने कहा था अगर तो खुदा का बेटा है तो जरा नीचे उतर, उसने वो नहीं उतरा। इसका मतलब मैं चेक कर लिया, अब नहीं उतरेगा, वो खत्म हो जाएगा और मैं दुनिया पर राज करता रहूंगा। बड़ी खुशी बना रहा था। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने जान दी, उसने कहा तमाम हुआ, और लिखा वो आलम रवा में उतर गया। हालेलुया। और कैदी रूहों को
आलम बाला को अपने साथ ही ले गया, वो सारे इख्तियार को उसने लिया। उसने कहा मौत और आलम रवई की कुंजियां मेरे पास हैं। जैसे दाऊद ने वहां जाकर उन पर धावा किया, ऐसे यीशु मसीह ने शैतान पर धावा किया और अपने लोगों को उसने वापस ले लिया। हालेलुया। वो आपको वापस लेना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है, पर आप यीशु मसीह को अपना जीवन दीजिए। और उसने क्या किया, वो अय्याशी कर रहे थे, खा पी रहे थे। और फिर लिखा 17वीं आयत, सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद पहले दिन की रात के पहले पहर से लेकर 6-7 बजे अंधेरा शुरू हुआ तो वो शुरू हो गया, और अगले दिन तक उनको लिखा, और सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा। उनमें से एक भी ना बचा, 425 जवानों के जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए थे। वो तो जब दाऊद ने अटैक किया ना, क्योंकि दाऊद की दहशत बड़ी थी वहां पर, वो जानते थे ये बड़ा जंगी हीरो है। उनको ये पता, इसने जाती जूलियत को 15-16 साल की उम्र में मार दिया था पकड़ के, नौजवान बच्चा ही था जब, खुदा का हाथ इस पर है। उन्होंने देखा कि दाऊद आ गया, उन्होंने कहा दौड़ ला दो। आपस में उन्होंने कहा पाजी जी इतना मुकाबला किया तो मर जाओ, दौड़ लगाना ही अच्छी बात है। और उन्होंने ऊँटों पर बैठकर भाग गए, तितर बितर हो गए। और दाऊद ने सब कुछ जो अमालिकी ले गए थे छुड़ा लिया, और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ा लिया। हालेलुया। और ना सिर्फ बीवियों को छुड़ा लिया, और उनकी कोई चीज गुम ना हुई, ना छोटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां। हालेलुया। सब कुछ वापस आ सकता है अगर आप अपने आप को खुदा में मजबूत करें। आप ये जंग जीते हुए हैं, फकत आप घुटनों के बल होकर दुआ करते रहे। हालेलुया। और लिखा, और ना कोई चीज जो उन्होंने ली थी दाऊद सब का सब लौटा लाया। और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां गाय बैल ले लिए, और वो उनको बाकी मवेशी के आगे ये कहते हुए हाँक लाए कि ये दाऊद की लूट है। और दाऊद उन 200 जवानों के पास आया जो ऐसे थक गए थे। फिर दाऊद उनके पास आया, और हासिल कलाम फाइनल बात यह है कि दाऊद ने खुदा की मर्जी मालूम की, खुदा से दुआ की, खुदा ने मजबूत किया अपने आप को, और उसने जाकर धावा बोला और सब कुछ वापस ले आया। आज आप भी वापस ला सकते हैं, आप अपना खोया हुआ इत्मीनान वापस ला सकते हैं, आपने खोए हुए बच्चे वापस ला सकते हैं। आपके बच्चे, आपके शौहर, आपकी बीवियां, आपका खानदान, आपका कारोबार, आपका बिजनेस, यीशु मसीह ने सब कुछ बहाल कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप वापस ले सकते हैं। खुदा तुम्हारी जंग करेगा और तुम चुपचाप तमाशा देखोगे। फकत आप घुटने टेक कर दुआ करें, और आपने तलवार और भाले से जंग नहीं करनी, बल्कि रूहानी आलम में उन चीजों से जंग करनी है। रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, ईमान की सिपर से जंग करनी है, नजात के खोद को पहनकर जंग करनी है, सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर जंग करनी है। हालेलुया। और इन सब के साथ एक्सरसाइज ये कि दुआ करते रहो, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लिखा, दाऊद बड़ा रोया, वो बड़े रोए। आप बहुत रो लिए, अब रोते ही ना रहें, अगला स्टेप उठाएं, घुटनों के बल हो जाएं, अपने आप को खुदा में मजबूत करें। यीशु मसीह सब कुछ रिकवर करने की सलाहियत रखता है। खुदा आपको बरकत दे।